Hi students, today we will learn about a new topic which is matrices. Now this word matrices is the plural of the word matrix. Some people also pronounce this as matrices, but the correct pronunciation is matrices. So if we are talking about a single entity, we will call that as a matrix, and if we are talking about many of them, then we will call them as matrices. Now, what is a matrix? First, we need to understand what is a matrix and what is the need of forming a matrix. So, for that purpose, let us consider a score sheet from a cricket match. Let us say that we have bowling analysis. So, let us say we have Zahir, we have Harbhajan, all these are bowlers, and we have Salil. We have 3 bowlers, and normally the analysis which you see goes like this: how many overs were bowled by a particular bowler, how many were maiden, how many runs were scored off him, and then what is the number of wickets that bowler got. So let us say Zahir Khan bowled 10 overs, there were 2 maidens, there were 40 runs, and then there were 3 wickets. Harbhajan bowled 9 overs, then there was only 1 maiden, and then he got 50 runs he gave, and then he got 2 wickets. And Salil got let us say 8 overs, and then he got 0 maiden, and then he got let us say 60 runs, and then he got 1 wicket. Now as we can see, all these numbers like here 10, 2, 40, 3, these numbers have no relation to each other, okay, but we are writing them in the form of a rectangular arrangement. Now if I remove all the other things and if I consider only the numbers here and enclose all these numbers inside 2 brackets like this, 2 square brackets, and I enclose all these numbers 10, 2, 43, and then 9, 1, 40, 9, 1, 52, and then 8, 0, 60, and 1. If I enclose these numbers inside a square, inside 2 square brackets, then this will become a rectangular arrangement of numbers. And such rectangular arrangement of numbers helps us many times in interpreting a real life situation. Now if suppose I told you like this, Zahir bowled 10 overs, then I told you like this, out of those there were 2 maidens, and then he gave 40 runs, and then he took 3 wickets, so it will take a long time. But if I represent the same information in the form of a rectangular arrangement, then it is very easy to read, and therefore such a rectangular arrangement plays a very vital role in interpreting data. In many other situations it plays a very important role, and such a rectangular arrangement of numbers is known as a matrix. Matrix is nothing but a rectangular arrangement of numbers. First we will say numbers, and then apart from numbers we can take functions also. We can put inside 2 square brackets, we can also put some kind of functions. If we put a rectangular arrangement of functions, then that will also be considered as a matrix. Now let me just give you one more example of a matrix. Let us say that if we have something like this, we have square brackets, we write number like this 0, 1, 2, 3, and then we write here 4, -1, -3 by 2, 5, then we write here minus half, then we write here 0, then we write here 1, and then we write here 10. Now if I write like this, that is another rectangular arrangement of numbers, and then again it will form a matrix. And if we write something like this, we write here cos x, then we write here sin x plus 3, then we write here x square, then we write here like let us say tan x minus 2. Then if we write these functions in the form of a rectangular arrangement, then they also form a matrix.
Now any matrix is always represented by using a capital letter. So we can use capital A for representing a matrix, we can use capital B for representing a matrix. So capital letters are normally used for representing a matrix. So here I have written two of the matrices. I have written like this. Now these matrices will play a very vital role, as I told you, in understanding, interpreting many other situations in daily life. So let us just go back to the NCERT and let us consider one more example which they have given in the NCERT. So let us go to NCERT here. Now I'll show you definition also, the definition which they have given in NCERT, but let us first consider the example which they have given in NCERT. They have given an example here like this. Suppose Radha has 15 notebooks and 6 pens, and then Fauzia has 10 notebooks and 2 pens, and Simran has 13 notebooks and 5 pens. Now this situation here can be represented very easily by using a matrix. How? Suppose we write like this: 15, 6. Now we call this as first row. We call this as a horizontal line. This will be a horizontal line, and any horizontal line, this direction we call as horizontal. So this is known as horizontal. So the first horizontal line here is known as the first row. So first row contains two numbers, 15 and 6. This is the direction of the first row. This way or this way, any which way, but this is the horizontal direction. So this is the first row, and then second row is containing the two numbers here, 10 and 2. So this is the second row, and then the third row here contains two numbers, 13 and 5. So rows are horizontal lines in a matrix. The horizontal lines are known as rows, and vertical lines are known as columns. So here the first column is containing the three numbers 15, 10 and 13, and the second column is containing three numbers again, 6, 2 and 5. Now if we see the first row, it is containing 15 and 6. And what is 15 and 6? These are the entities with Radha, the number of notebooks and the number of pens. So first row is representing the things held by Radha. Same way the second row represents the things which are held by Fauzia, and third row represents the things which are held by Simran. Okay, so first, second and third row correspond to Radha, Fauzia and Simran. And columns, if we see the columns here, the columns are corresponding to notebooks and pens. So if we see here 15, 10 and 13, these three numbers are representing the number of notebooks, and same way 6, 2 and 5 are representing the number of pens. So therefore we can see here how in a matrix the rows and the columns represent different type of data. Rows here are representing the girls, and then the columns here are representing notebooks and pens. Now as we know, as we have seen here in this matrix, in this particular matrix, there are 3 rows and there are 2 columns. So here there are 3 rows, first row, second row and third row, and there are 2 columns, first column and second column. So here if we see, number of rows is 3 and the number of columns is 2. So therefore we call this matrix as a matrix of order 3 by 2. We call this as a matrix of order 3 by 2. The first number will always represent the horizontal lines or the rows, and the second number will always represent the vertical lines or the columns. So we can see here that this is a matrix of order 3 by 2, which is representing the given data. This was the given data which we represented in the form of a matrix of order 3 by 2. But the same information could also have been represented in the form of a matrix of order 2 by 3. How we could have represented? Here you can see that the first row is containing 15, 10 and 13. So first row is corresponding to the number of notebooks. 15 is the number of notebooks with Radha,
10 is the number of notebooks with Fawzia and 13 is the number of notebooks with Simran. Okay, and second row is representing the number of pens. So number of pens held with Radha, Fawzia and Simran are 6, 2 and 5. And here the columns are representing now the girls. So first column 15 and 6, it is held by Radha. Second column 10 and 2, it is held by Fawzia, and third column 13 and 5, it is held by Simran. So therefore we could have represented the same information in the form of a matrix of order 2 by 3 also. There are 2 rows, so I have written 2 here, and there are 3 columns, so I have written here 3, 1, 2 and 3. So this is a matrix of order 2 by 3. One more thing which we can observe from the 2 given matrices, as we can see here, the number of entries in this matrix was 1, 2, 3, 4, 5, 6. We call the numbers inside the matrix as the entries, and here also the number of entries inside the matrix is 6. So if the order is 2 by 3, the number of elements will be 2 multiplied by 3, that is 6. If the order was 3 by 2, then again the number of entries inside the matrix will be 3 multiplied by 2, so it will be 6. So in both the cases we had 6 entries or 6 elements inside the matrix. So number of elements, we can have a formula like this: number of elements in a matrix is equal to m into n. m into n, whatever is the multiplication से जो भी आता है, that will be the answer. Okay, so number of elements will be a single number while order always consists of 2 numbers. ऑर्डर में आपको हमेशा 2 नंबर्स लिखने हैं. यहाँ पर ऑर्डर 3 by 2 है, हम ये नहीं बोल सकते कि the order is 6, that will be wrong. ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 by 3 है, we cannot say that the order is 6. Order is not equal to 6. ओके, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6, ये हमें याद रखना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6, नॉट द ऑर्डर. ओके, सो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी का समझा दिया है. ओके, यहाँ पर अब हम डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे. अरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. मैंने आपको पहले ही बताया नंबर्स और फंक्शंस. द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में से, आप देख सकते हैं. ऑर्डर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. अब थोड़ी सी एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर समझ लेते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है. जैसे मैं कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स लिखता हूँ ईजीनेस के लिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसा एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिया है. क्या आप गेस कर सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है. नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स इज 2, सो देयरफॉर इट हैज़ 2 रोज. और वर्टिकल लाइन्स अगर हम देखने जाते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 कॉलम्स. मैंने आपको बताया जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3. दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 3. लेकिन जब हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर हम बोले नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. जैसे हमारे पास 100 रोज़ हो गए और हमारे पास 300 कॉलम्स हो गए, तब ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है. क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है. हमें एलिमेंट्स के बीच में गैप छोड़ना पड़ता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गैप छोड़ना पड़ता है. तो ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है. तो किसी बहुत बड़े मैट्रिक्स को एक छोटे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर. तो जैसे मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखी थी, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 एंट्रीज थी इस मैट्रिक्स में. तो इसे हम देख लेते हैं एक बार फिर से. एक्चुअली जैसे आपको पता होगा कि अलजेब्रा में नॉर्मली जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे पास हमें किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है, तो हम उसको सपोज़ कर लेते हैं पहले x और फिर हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं.
तो जिस तरीके से अलजेब्रा में हमारे पास एक x रहता था, उसी तरीके से मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैट्रिसेस की केस में क्या होगा कि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से। ओके, अब चाहिए तो इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, इसको c ले लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, मैट्रिक्स बहुत बड़ा होगा तो a b c d सब खत्म हो जाएंगे, उसके आगे मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग रिप्रेजेंट करने की जगह सबको हम a से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पर a से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 6 एंट्रीज है, हमारे पास 100 भी होते तो हम उसको a से ही रिप्रेजेंट कर लेते सबको। अब अगर हमने सबको a से रिप्रेजेंट कर लिया है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब यहाँ पर 2 छोटे छोटे नंबर लिखते हैं, उसमें से जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रो टू विच दिस नंबर इज बिलोंगिंग। ये जो 1 के ऊपर मैंने अभी सर्कल किया है, तो 1 कौन से रो को बिलोंग कर रहा है, 1 फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है। और 1 कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, तो 1 कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। और 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो को। तो जो भी रो का नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले 1 लिखा, और जो कॉलम का नंबर होता है वो हम उसके बाद लिख देते हैं। तो ये हो गया A11। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास 2 है, तो अब ये 2 क्या है, 2 इज़ बिलोंगिंग टू द फर्स्ट रो, ये तो हमें दिख रहा है, एंड 2 इज़ बिलोंगिंग टू द सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए हमने लिखा 1 और सेकंड कॉलम के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज A12। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए A11 का वैल्यू 1 है और A12 का वैल्यू इसके लिए 2 है। सेम वे गेस कीजिए कि यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको आप थोड़ा सा सोचें तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय राइटिंग A13। तो हम लिख सकते हैं A13 इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये तो हमारे फर्स्ट रो के एंट्रीज हो गए। सेकेंड रो के एंट्रीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो सेकेंड रो के एंट्रीज को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम आ गए। अब ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, इसमें 3 एंट्रीज हैं 4, 5 और 6। तो जो भी नंबर हमारे सेकेंड रो में आते हैं उन सब का फर्स्ट सबस्क्रिप्ट तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेकेंड रो में आ रहे हैं 4, 5 और 6 तीनों। लेकिन ये अलग अलग कॉलम में आ रहे हैं तो इनका सेकेंड एंट्री जो है वो अलग हो जाएगा। तो 4 जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, 5 जो है वो सेकेंड कॉलम में आ रहा है, ये देखिए ये वाला सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो ये A22 हो गया। और ये 6 जो है ये थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज A23। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A21 इज इक्वल टू 4, A22 इज इक्वल टू 5 एंड A23 इज इक्वल टू 6। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, उसके एलिमेंट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कौन सा नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, हम ये सबस्क्रिप्ट वाला नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। और इसको यूज़ करके हम कोई भी कितने भी ज़्यादा अगर एंट्री हो मैट्रिक्स के अंदर, हम सबको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन जनरल अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Aij। Aij इज रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें कितने भी हो सकते हैं। अब जितना आप i का वैल्यू बढ़ा देंगे, जैसे हमने जो i इज व्हाट, i इज द नंबर ऑफ रोज, तो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, i के 2 वैल्यूज थे 1 और 2, और j के कितने वैल्यूज थे, वहाँ पर 3 कॉलम थे, तो j के कितने वैल्यूज थे, j के 3 वैल्यूज थे 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वहाँ पर देखा था। तो Aij, और यहाँ पर बाहर क्या लिख देते हैं, इसका ऑर्डर लिख देते हैं m/n। तो अगर हम पिछले मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो उसके एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, पहले i को वैल्यू दीजिए 1, तो यहाँ पर पहले क्या मिलेगा A1, और उसके बाद j को भी वैल्यू दीजिए 1, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें रो लिखना है, तो रो के लिए फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 1, फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, और उसके बाद j का वैल्यू चेंज कर दीजिए, तो ये आ गया 2। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का आपको थर्ड एंट्री लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, ये आएगा 1, 3। अब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने बताया j के वैल्यूज़ 1, 2, 3 हैं, तो 3 से ज़्यादा j का वैल्यू नहीं हो सकता है।
फिर सेकेंड रो के एंट्रीज आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ए, उसके बाद आपने आई को वैल्यू दिया 2, फिर जे के वही 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 बार आप जे को वैल्यूज़ दीजिए तो ये A22 और ये A23 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, जिसका ऑर्डर है 2/3। तो इस मैट्रिक्स को हम फॉर्म कर सकते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमें आई और जे के रेंजेस पता हों तो हम उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया होता कि आई के वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और जे के वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 तो क्या होता फिर हमारे पास वो एक 3/4 मैट्रिक्स बन जाता और अगर वो 3/4 मैट्रिक्स बन जाता तो उसमें हमारे पास 12 एंट्रीज होते। ठीक है, आई और जे के वैल्यूज़ इक्वल भी हो सकते हैं, तो जैसे आई के वैल्यूज़ आपने 3 कर दिए 1 2 3 और जे के वैल्यूज़ भी 1 2 3 कर दिए तो 9 एंट्रीज हो जाएंगे आपके मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को, अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी होता तो हम उसको ऐसे लिख सकते थे BIJ और फिर M×n। तो ये किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको AIJ या BIJ का वैल्यू दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ I एंड J, तो आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे हमने लिखा A = AIJ, हमने यहाँ पर I और J के रेंजेस स्पेसिफाई कर दिया, हमने बता दिया I एंड J कैन बी 1 और 2। ठीक है, मतलब I के वैल्यूज़ भी 1 और 2 हो सकते हैं और J के वैल्यूज़ भी 1 और 2 हो सकते हैं। तो टोटल कितने एंट्रीज हमारे फॉर्म हो जाएंगे, पहले I को वैल्यूज़ दे दीजिए, तो I को वैल्यूज़ आपने दिए, पहले I का वैल्यू 1 पुट किया, फिर J के कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, J के 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो आपने 2 वैल्यूज़ लिख लिए 1 और 2। फिर I का दूसरा वैल्यू 2 हो सकता है। J के कितने वैल्यूज़ हैं आपके पास, J के वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 और 2। तो इस तरीके से कितने एंट्रीज फॉर्म हो गए, हमारे 4 एंट्रीज फॉर्म हो गए। दिस इज़ द मैट्रिक्स A। अब क्या होता है, कभी कभी वो इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं, वो बोल देते हैं कि AIJ = I + J। मतलब आपको जो भी एंट्री लिखना है, जैसे अगर आपको A11 लिखना है तो A11 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू I वैल्यू प्लस J वैल्यू। तो अगर आप I और J दोनों को ऐड कर दें तो A11 के लिए 1 + 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, A11 का आ गया वैल्यू 1 + 1 दैट इज़ 2। सेम वे अगर आपको A12 का वैल्यू लिखना हो तो इसके लिए I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 2। तो 1 + 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। A21 का वैल्यू भी 3 आ जाएगा और A22 का वैल्यू 4 आ जाएगा, बिकॉज I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, तो I + J करेंगे तो 2 + 2 4। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको I + J / 2 कर दिया, तो /2 कर दिया तो सब जगह आप /2 कर देंगे, तो ये आपके एंट्रीज फॉर्म हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसका अगर हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3/2 3/2 2। तो इस तरीके से हमारे एंट्रीज फॉर्म हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि उन्होंने AIJ का अगर I और J के टर्म्स में वैल्यू दे रखा है तो आप मैट्रिक्स के सारे नंबर्स लिख सकते हैं वहाँ पर। मोस्टली जो आप मैट्रिक्स डील करेंगे अपने सिलेबस में वो नंबर्स से रिलेट करेंगे, और अगर नंबर्स नहीं है तो वहाँ पर थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो वैल्यू वाले होंगे, आप वैल्यू भी रख सकते हैं उनका वहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं आएंगे। मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से हमें अभी डील यहाँ पर नहीं करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझा दी। अब वापस चलते हैं एक बार NCERT। तो यहाँ पर NCERT में ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये सब मैंने आपको समझा दिया है, अभी IJ वाला नोटेशन समझा दिया आपको। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली AIJ, ये मैंने आपको भी बताया, टू इंडिकेट A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स और फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें भी डेटा जो है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे मेन वर्कर्स हैं, ये सब विमेन वर्कर्स हैं, ये फैक्ट्री है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फैक्ट्री। तो जैसे अगर हम देखने जाए तो थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन वर्कर्स हैं और 26 जो है वो विमेन वर्कर्स हैं। तो ईजी हो जाता है डेटा को देखना, अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ और डेटा को देखना, उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स
व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी भी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स कैसे आते हैं? एलिमेंट्स आर ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर उसका 8 एलिमेंट्स हैं तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/8, मतलब 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, या फिर 4 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 4। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स 8 हैं तो उसके 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 1/8, 8/1, 4/2 एंड 2/4। फिर ये कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कैसे करना है। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो कुछ अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, बहुत ही इजी है समझने के लिए। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? केवल आपके पास कॉलम ही होगा, तो उस कॉलम में कितने भी एंट्रीज हो सकते हैं। जब जैसे यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हमेशा एक ही कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में। अब इसमें रोज़ कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 रोज़ हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम हमेशा एक ही होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा बाय 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है? ये 4/1 का है, यहाँ पर आप देखिए 4/1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये 4/1 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 4 नंबर्स लिखे हुए। अब इसमें अगर एक ही कॉलम में 5 नंबर्स लिखे होते देन इट विल बिकम 5/1। तो इस तरीके से ये कॉलम मैट्रिक्स है। सेम तरीके से रो मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा, तो उसका फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमेशा 1 होगा, तो वो 1/n फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। 1 जैसे यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, तो देयरफॉर इट इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4। तो इस तरीके से ये होता है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए देन इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 2 3 4, तो इसमें 4 एंट्रीज हैं। नंबर ऑफ रोज हियर इज, यहाँ पर 2 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो 2। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो अगेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में क्या होता है? वहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब इन्होंने अगर स्क्वायर बोल दिया तो ऑर्डर ये क्या बोल रहे हैं? n बोल रहे हैं, ठीक है। n विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर नंबर। जैसे अगर इन्होंने बोला ऑर्डर यहाँ पर इन्होंने बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो जब भी स्क्वायर बोल देंगे तब हमें m इंटू n फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर n का मतलब ये है कि उसका नंबर ऑफ रोज भी n है और उसका नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोल दिया दैट मीन्स इट इज हैविंग n रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो भी, और इन्होंने उस केस में बता दिया है कि यहाँ पर जो डायगोनल टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है और बॉटम राइट की तरफ जाता है, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज हैं 1, 4 और 6, तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स भी होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर आप देखिए 3 एंट्रीज हैं, -1.1, 2 और 3, और बाकी सारे एंट्रीज 0 हैं। तो जब भी बाकी सारे एंट्रीज 0 हो गए दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। फिर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज भी इक्वल हो गए, अब ये डायगोनल एंट्रीज अगर हम यहाँ पर देखने जाते हैं तो ये सारे डायगोनल एंट्रीज यहाँ पर √3 हैं, तो इन दैट केस वी कॉल सच अ डायगोनल मैट्रिक्स एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix means a matrix which is a diagonal matrix and it is having all the principal diagonal entries equal. Principal diagonal के अगर सारे entries equal हो जाते हैं then in that case we call that matrix as a scalar matrix. तो यहाँ पर देखिए इसमें -1 है, इसमें √3 है, यहाँ पर एक ही एंट्री है 3, तो that is also a scalar matrix. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक
हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हम या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एंट्रीज 1 होते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एंट्रीज 1 हो गए, बाकी सारे एंट्रीज 0 हैं, ऑब्वियसली इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो सारे एंट्रीज 0 हो गए, तो सच अ डायगोनल मैट्रिक्स और सच अ स्केलर मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज 1 होंगे और बाकी सारे एंट्रीज 0 होंगे। यहाँ पर इन्होंने 3 आइडेंटिटी मैट्रिसेस हमें दिखाए हैं। द फर्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, एंड दैट वन इज ऑफ 3rd ऑर्डर। तो ये तीनों ऑर्डर के यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं, अलग अलग ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जीरो मैट्रिक्स का। ये भी बहुत ही ईजी है। जीरो मैट्रिक्स में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अगर सारे एंट्री 0 हो गए किसी भी मैट्रिक्स में, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। एक याद रखने लायक बात ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है या वो स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसे देखने जाते हैं, दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, which is actually a zero matrix here, but this is not a square matrix, this is also a zero matrix here. So for zero matrix it is not compulsory to be of a square type. Okay, number of rows may not be equal to number of columns. Now next is equality of matrices. Equality of matrices means when will two matrices be equal. तो यहाँ पर हम इसका definition देख लेते हैं. Two matrices A and B are said to be equal if firstly they are of the same order and secondly each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij for all I and J. बेसिकली क्या है कि दो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सारे इक्वल हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो टॉप लेफ्ट वाला एंट्री है वो टॉप लेफ्ट वाले के इक्वल होना चाहिए, देन सेकंड लेफ्ट वाला जो एंट्री है टॉप का वो सेकंड टॉप वाले लेफ्ट के एंट्री के इक्वल होना चाहिए, और फिर यहाँ पर बाकी के जो नीचे दोनों एंट्रीज हैं ये दोनों एंट्रीज भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होना चाहिए। थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो, फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सारे एंट्रीज अगर इक्वल हो जाते हैं तो दीज टू मैट्रिसेस विल बी सेड टू बी इक्वल। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें ये पता हो कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं और एक मैट्रिक्स में कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हों, जैसे यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इसको अगर मैं ए बोल दूँ और इसको मैं बी बोल दूँ, आई एम सेइंग हियर दैट ए इज़ इक्वल टू बी। अगर a और b इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। सो ये जो टॉप लेफ्ट वाला एंट्री है ये टॉप लेफ्ट वाले एंट्री के इक्वल होगा, तो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x वैल्यू विल बी इक्वल टू -3। और इस तरीके से जैसे आपने x का वैल्यू निकाला है, आप यहाँ पर इन्होंने बोला a b c x y z वैल्यूज निकाल लीजिए, तो आप सबके वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकते हैं। दैट इज़ द यूज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बट इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें याद रखने वाली बात एक ये है कि दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स इक्वल नहीं हैं देन दे कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स इक्वल हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 10, ओके 30 और 10 कर दिया मैंने। यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 0 1 1 0। क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों?
because the first matrix is having the order 2 by 2 and the second matrix is having the order 2 by 3. तो अगर ये दोनों अनइक्वल ऑर्डर वाले हैं then these two matrices can never be equal to each other. तो ये हमें याद रखना है कि कोई भी दो matrices तभी इक्वल हो सकते हैं when they have the same order. ओके और जो भी एंट्रीज़ हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 0 1 और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 0 1. ये याद रखना है कि दीज टू मेट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. वाई नॉट इक्वल टू ईच अदर? बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखने जाते हैं तो यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री है वो 0 है. तो दीज टू एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड देयरफॉर दीज टू मेट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. नंबर सेम है दोनों मेट्रिसेस में, लेकिन ये दोनों मेट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है. सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए और फोर्थ वाला जो है वो फोर्थ वाले के इक्वल होना चाहिए. ये तो 2 by 2 मैट्रिक्स की बात की है, बट इन जनरल इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ मेट्रिसेस. जो भी ऑर्डर होगा मेट्रिसेस का, हमेशा अगर इक्वलिटी है तो वहाँ पर क्या है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए. ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है उसको यूज़ करके यहाँ पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को.